Zoom recording, yes. Okay guys, so in today's class we are like starting with electrolytic decomposition. तो आपको आपके screen पर, okay, I'll do that अथर्व. So electrolysis of water से शुरू करते हैं. हमने बोला था the thermal decomposition is basically for three types, right? The first one was with the help of heat, and the one which used heat is called as thermal decomposition. We have seen three examples for thermal decomposition, right? Ferrous sulfate we have seen lead nitrate giving out that brown colored fumes. Ferrous sulfate was like giving you the sulfur smell, and then there was calcium carbonate which was giving out calcium oxide and carbon dioxide, right? And now in today's class we will start with electrolytic decomposition. Okay, Divyajot, focus. Electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition is we are going to use the power of electricity to decompose a particular compound, especially water. Okay, so when we are going to decompose this, the first main question which comes to anyone's mind or which can be asked from you is like name, just a sec, name the two gases, okay, produced. Name the two gases produced. What are the two gases which are produced? Okay, actually, you know, there is some problem with this particular software. Just give me a second. I am going to, because otherwise this is going to take a lot of our time. Just a sec. I'll take another thing for us and come back to our normal lecture. Okay, where is, just a second. नहीं, आज चश्मा नहीं पहना आज. हाँ, सही बात याद दिलाई यार, बिना चश्मे के मुझे दिख रहा है. That is amazing. Thank you. बिना चश्मे के भी काम चल गया है. अब देखते हैं. I also keep on using different kind of apps जो कि एक दूसरे के ऊपर आराम से चल सकें. And we were here और हम black color ले रहे हैं, right? So the first question which I am asking you is, you have to give me the gases. Name the two gases produced in this one, right? Very good, Arpita. The two gases produced, everyone knows, is hydrogen and oxygen, right? What we are going to do is we are like taking water, H2O. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. H2O is water, and water को whenever we pass electricity. Okay, so when we pass electricity, it gives us, it breaks down into hydrogen and oxygen. So as you can see, this particular reaction is right now not balanced. So we are going to balance it by like putting 2 in front of it. So that makes it 2 over here. So 4 hydrogen is balanced, and oxygen is also balanced, right? So when we pass electric current through water, then only it breaks into hydrogen and oxygen, right? If we are going to boil water, that is not going to separate water into hydrogen and oxygen. We'll simply evaporate water. So we have to remember, if you want to break water into hydrogen and oxygen, its components, its constituents, we need to pass electricity. So this is called electrolytic decomposition, right? So now the one important question which comes very usually, very often in this exam is like, which electrode is oxygen produced and at which electrode is hydrogen produced? Okay, that is one more question, right? What are the two gases?
The two gases are hydrogen and oxygen, you told it. Now we have to listen carefully and see this diagram also very carefully. The one over here is written as anode, the one over here is cathode. We know cathode is negative, anode is positive, right? So -1, we have got hydrogen over here, right? So cathode is hydrogen and anode is oxygen. And here, please remember one more thing we have to notice, and that is we have to understand how much of hydrogen and how much of oxygen is produced. So if you see this reaction over here, I would request everyone to please switch off their cameras, right? Please switch off your videos, right? That will make work very simple, very easy. Yes, it will lag only because if the internet speed at your end is slow and you are still using videos. Okay, so please switch off your videos. One request for everyone. Now listen carefully over here is that hydrogen and oxygen are the two gases produced. Hydrogen is produced at cathode and oxygen is produced at anode, right? And the amount of gas produced is also different. Now when once you see this balanced equation, right, once you see this balanced equation, we find that hydrogen is double. If you see over here, hydrogen double है बेटा, डबल द क्वांटिटी में मिल रहा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. ऑक्सीजन के आगे का नंबर कितना है बच्चों? ऑक्सीजन के आगे का नंबर है 1. हाइड्रोजन के आगे का नंबर जब बैलेंस करने के बाद कितना आ रहा है 2. सो उसका मतलब है कि वो डबल द क्वांटिटी में मिल रहा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. तो जब आप ये ड्राइंग बनाएंगे, आई होप मैं इतनी देर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग ड्राइंग भी बना रहे होंगे, करेक्ट? तो इसमें जो आप हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी बनाएंगे ना, वो आप ऑलमोस्ट डबल दिखाएंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ऑक्सीजन वाला जो है, ओके, ऑक्सीजन वाला जो है, वो जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो पोर्शन ऑलमोस्ट हाफ है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. ओके, सो यहां से हमारे पास एक तो विच गैस इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आ सकता है. और उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहां पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है. तो हमने बोल दिया हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड. तो इसके लिए कभी कभी बच्चे ये बोलते हैं, ध्यान देना, बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये याद कैसे रखें कि कौन सी गैस कहां पे प्रोड्यूस होगी. तो बच्चों उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी टेक्निक है, वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं. आइए नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए. नेक्स्ट स्लाइड कहाँ है भाई हमारी? तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड. आ रही है पूरी अच्छे से? हाँ, पूरी अच्छे से आ गई. तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है? इसमें याद क्या रखना है मेरे बच्चों को? हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड. अगर एक चीज आपने याद रख ली कि हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है. दैट मींस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, राइट? और वो याद कैसे करेंगे? हाई कोट से. हाई कोट का H और कोट का C. हाई का H, कोट का C. H फॉर हाइड्रोजन एंड C फॉर कैथोड. H फॉर हाई एंड C फॉर कोट. समझ में आ गया? एकदम सिंपल. एक चीज आपको याद रखनी है, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. लास्ट स्लाइड में बेटा जो भी आपको दिखाया जाएगा वो सब हर्ष में इस पर्टिकुलर स्लाइड में दोबारा आपके लिए करके दे रहा हूं, ठीक है बेटा? तो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, टू गैसेस हमने लिखा था. देखो हर्ष, हमने एक तो लिखा था, रिएक्शन लिखा था 2H2O in presence of electricity gives you 2H2 plus O2. The two gases which were produced were oxygen and hydrogen. Okay, क्वांटिटी की बात करें तो हाइड्रोजन वाज डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, करेक्ट? और तीसरी चीज वो आपसे पूछ सकते थे कि कौन सी गैस कहां पे प्रोड्यूस हो रही है. हाइड्रोजन पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है. तो वो एक आपने याद कर लिया कि यस, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, सो ऑक्सीजन इज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड एट एनोड. मिहिर जी बोल रहे हैं हाइड्रोजन हैविंग वैलेंसी +1, सो कैथोड इज ऑलवेज positive, so it is formed at cathode. Similarly, oxygen's valency is -2, so it is formed at the negative terminal anode. Is my logic correct? मिहिर लॉजिक एकदम उल्टा हो गया है. मिहिर जबरदस्त, you are writing a lot.
बहुत बढ़िया, एंड आई लव इट। आई डोंट नो अबाउट अदर टीचर्स, भाई ऐसे टीचर्स भी हैं जो बोलते हैं भाई बिल्कुल हमें चैट नहीं करनी है, आप चुपचाप हमारे लेक्चर सुनो। आई एम नॉट दैट काइंड। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं, आपका राइटिंग स्किल बहुत जबरदस्त है, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा मिहिर, हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस नहीं अट्रैक्ट करते हैं। यस, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, याद रखना। तो अगर आपका हाइड्रोजन H प्लस है, वो पॉजिटिव है, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। सो कैथोड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, आप समझ रहे हैं। और जो आपका ऑक्सीजन है वो O2 माइनस बनाता है, ऑक्साइड आयन बनाता है, तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा, यानी कि वो एनोड के पास जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। नहीं दिव्यज्योत, कैथोड पॉजिटिव नहीं है, कैथोड यहां पर नेगेटिव है। जब आप 12th में जाएंगे ना, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ रिएक्शन में कैथोड पॉजिटिव भी है, कैथोड नेगेटिव भी है, बट यहां पर कैथोड नेगेटिव ही है, क्योंकि कैटायन पॉजिटिव होता है भाई, कैटायन पॉजिटिव होता है। कैटायन पॉजिटिव, सो कैथोड नेगेटिव। एनायन क्या, एनायन नेगेटिव, सो एनोड पॉजिटिव। ठीक है दिव्यज्योत, समझ में आया? मिहिर जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, वो कैटायन था, ये कैथोड है, दोनों चीजें अलग हैं। कैटायन को कैथोड के साथ लिंक मत करो। कैटायन पॉजिटिव, तो वो जहां जाएगा वो है कैथोड, तो कैथोड है नेगेटिव। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, अपने माइंड में उसको उल्टा सुल्टा मत बनाओ। ठीक है। कभी कभी आपके लिए वो लोग एक क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने दिया हुआ है पेज 10 में। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब एंड यू हैव टू नेम द गैस। क्या बोल रहे हैं? व्हाई इज द गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब डबल द क्वांटिटी ऑफ द अदर एंड नेम द गैस। ये तो इतना सिंपल हो गया। आप बोलोगे द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल द क्वांटिटी इज हाइड्रोजन, राइट? वाई। और अगर कोई आपसे पूछेगा ना वाई, तो देखिए मैं वाई का यहाँ रीजन लिख रहा हूं, आप बस आगे वो रीजन लिख लीजिएगा, वाई। सो रीजन में आप लिखेंगे दिस इज, एकदम सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो भाई रिएक्शन में दिख रहा है ना डबल है इसलिए, पर आप लिखे वैसा तो वहां लिख नहीं सकते, तो आप ऐसे लिखेंगे दिस इज वाई। आप लिखिए दिस इज वाई बिकॉज वाटर, चाहिए तो आप H2O लिख लीजिए साथ में। H2O हैज टू पार्ट्स, ध्यान देना, has two parts of hydrogen, has two parts of hydrogen as compared to only one part of oxygen। ठीक है, क्योंकि आपको ये डबल द क्वांटिटी, यस सही बोल रहे हैं तन्मय, 2:1 जो बोल रहे हो ना, तो उसके लिए आपको ये वर्ड यूज करना है, टू पार्ट वन पार्ट। ध्यान देना, टू पार्ट वन पार्ट, क्या बोल रहा हूं, टू पार्ट हाइड्रोजन वन पार्ट ऑक्सीजन, ऐसा हमको रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। देयरफॉर हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज डबल। तो अगर इसका डायग्राम भी आया तो हाइड्रोजन हमको डबल दिखाना पड़ेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ड्राइंग में भी दिखाना पड़ेगा। पार्ट की जगह एटम मत डालो, गलत हो जाएगा, बिकॉज वो हाइड्रोजन एटम नहीं है अर्पिता, है ना, वो तो हाइड्रोजन गैस है, मॉलिक्यूल है, और उसके हम किसको रिफर करके हैं, उसके आगे के टू को रिफर कर रहे हैं, तो उसको आप टू पार्ट्स और वन पार्ट करके बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बच्चों। सो ये था बच्चों हमारा, भाई ये क्या था हमारा, ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। हमने किसका इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन किया, वाटर का किया। कौन कौन सी गैसेस मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी गैस डबल थी, हाइड्रोजन। किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन कहां मिली, हाइड्रोजन मिली कैथोड पे, ऑक्सीजन कहां मिली, एनोड पे मिली। क्या है फॉर्मूला लर्न करने का, हाई कोट। कैसे याद करेंगे, हाई में जो H होता है मतलब हाइड्रोजन, और कोट में जो C होता है मतलब कि कैथोड। देख लीजिए पूरे का पूरा मैंने एक सेंटेंस में आपके लिए पूरा का पूरा फ्रेम करके वापस आपके सामने रख दिया। आगे चलते हैं। दिव्यज्योत भाई क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है
दिव्यज्योत का क्वेश्चन सुनो, बोलता है सर इसमें हम ग्रेफाइट रॉड ही क्यों यूज करते हैं? भाई मैं अगर सिंपल सिंपल बोलूं ना क्यों यूज करते हैं, तो एक तो चीज सस्ती है, करेक्ट, और दूसरी अवेलेबल है। ग्रेफाइट रॉड की बात करूं तो जो हमारे पास घर में जो पेंसिल सेल होता है ना, पेंसिल सेल को अगर मैं तोड़ रहा हूं, करेक्ट, तो उसके अंदर से जो पतली सी रॉड निकलती है अंदर, पता नहीं आपने कभी ऐसा किया कि नहीं, लेकिन हमने जरूर किया है। जो घर में जितने भी सेल बच जाते थे ना उसको हम तोड़ते थे, तो उसके अंदर से वो रॉड निकली है, सो दैट इज अ ग्रेफाइट रॉड। सही बोल रही है अर्पिता, पेंसिल की बात कर रही है ना, वो भी सही है, पेंसिल के अंदर भी जो है वो ग्रेफाइट रॉड है। तो पेंसिल को भी अगर मैं दोनों तरफ से छील लूं ना, तो उसको भी यहाँ पे यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। नहीं तो उसकी जगह मुझे कॉपर, दूसरा कोई मेटल लेना पड़ेगा, विच इज एक तो महंगा होगा, ठीक है ना, दूसरा भी रिएक्टिव भी हो सकता है। तो ये चीज भी सही है कि जो हमारा ग्रेफाइट है ना, वो यूजुअली नॉन रिएक्टिव, सस्ता, टिकाऊ, और ये बहुत सारे रीजन उसके लिए हो सकते हैं। ठीक है दिव्यज्योत, क्या बात है, स्कूल में किया है तो बहुत अच्छा है। वन टाइम आई ब्रोक अ न्यू सेल। भाई यश, तुम महान हो तुम महान हो भाई। सेल को मरने दो, उसके अंदर का रिएक्शन खत्म होने दो, फिजिक्स में हमने पढ़ा था, उसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाने दो, उसके बाद उसको तोड़ा ताड़ी करो। भाई नए फ्रेश को तोड़ दिया इसने तो। अच्छा जंग लगा हुआ था, ठीक है, फिर ठीक है, ये तो बताया ही नहीं, सीधा बोल दिया कि मैंने नए वाले को तोड़ दिया था। हाँ वो लेड जो बोलते हैं ना अर्पिता ध्यान से सुनना, देखो अर्पिता बोलती है क्या पेंसिल में लेड होता है कि ग्रेफाइट होता है, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। तो जो पेंसिल के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, पर उसको हम पेंसिल लेड बोलते हैं, वो दूसरा लेड, वो अपना ये वाला लेड नहीं होता, जो फॉर्मूले वाला जो लेड है, पीबी वाला जो लेड है वो नहीं होता उसके अंदर। अगर वो होता तो वो पेंसिल हमारी बड़ी महंगी हो जाती, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है पेंसिल लेड, वो अलग चीज हो गई। ठीक है, दिव्यज्योत को भी समझ में आ गया। यश ने बोला मैंने बचपन में ऐसा किया था, चलो ठीक है अभी नहीं करते, ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर जंग लगा था सेल तो वो नया कैसे हो गया? नहीं, कई बार क्या होता है, रखे रखे भी जंग लग जाता है ना, मेरे बच्चे नया सेल खरीद के लाते हैं, 4-5 लेकर के आ गए, एक आध यूज कर लिया, बाकी वो वैसे ही रख दिया, रखे रखे जंग लग जाता है, रखे रखे खराब हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो चलिए जंग और उस चीज को हटा देते हैं, रस्टिंग को हटा देते हैं, आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, बहस को इधर ही खत्म कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन कर लिया, दूसरा ये कौन सा किया हमने, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कर लिया। आप लिख रहे हैं ना सब ध्यान से, थर्ड 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 आ जाते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में। तो मैं ये स्लाइड को हटा रहा हूं, बहुत देर हो गया, ये स्लाइड यहीं पे था। आ जाते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में, ठीक है ना, ये तो हमने कर लिया। आ जाते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में, ये आ गए हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में बच्चों। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हाँ बच्चों, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में देख रहे हैं आप, बाहर सूरज की लाइट आ रही है बाहर से, हाँ जी, सनलाइट यहाँ से पड़ रही है, और अंदर जो चाइना डिश है, उस चाइना डिश में रखा हुआ है हमारा सिल्वर क्लोराइड। तो ये देखिए फॉर्मूला भी आपके सामने रख दिया है, AgCl। हाँ, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, इज इनफ फॉर इट टू रिएक्ट, उससे एनर्जी ले लेता है सनलाइट से, एंड देन इट रिएक्ट्स एंड यू गेट 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। अर्पिता बाद में मैं ये आपको वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज मैं दूसरे मेथड से लिख रहा हूं, आप समझ रहे हैं, आज मैं स्लाइड को साफ कर देता हूं, मैं क्लीन कर रहा हूं, मैं एक ही स्लाइड के ऊपर काम कर रहा हूं, तो वो स्लाइड पे नहीं लिख रहा है, वो मेरे स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं, और उसको मिटा देता हूं, तो पिछली स्लाइड ब्लैंक नजर आएगी आपको, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, फिर आप एक बार देख लीजिए, जो थोड़ा बहुत मिस आउट हो जाता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली वो जूम का जो पेन है ना, वो चल नहीं रहा है इस पे ठीक से, इसलिए आई हैव टेकन वन मोर पेन टू राइट ऑन दिस, ओके। सो ये था सिल्वर क्लोराइड, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें सिल्वर क्लोराइड के अलावा, ये देख लीजिए निहाल बैच 1, क्या बात है, सिल्वर क्लोराइड, फिर सिल्वर ब्रोमाइड भी लिख दिया उन्होंने, शाबाश, बहुत बढ़िया। अर्पिता जी फोटोसिंथेसिस भी है, बट हम अपना थोड़ा सा केमिकल, केमिस्ट्री से चैप्टर है, तो केमिकल से थोड़ा रिलेटेड हम लिखेंगे। तो दूसरा जो हम लिखने वाले हैं, वो हम लिखने वाले हैं, आप साथ साथ में लिखते जाओ बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन, और फिर से वो यहीं पे सनलाइट के प्रेजेंस में ही होने वाला ये रिएक्शन।
ठीक है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में ही हम ये रिएक्शन करने वाले हैं और हमको मिलने वाला है Ag, करेक्ट, और हमको मिलने वाला है Br2। तो ध्यान देना, एक हमको मिलने वाला है Ag और एक हमको मिलने वाला है Br2। एक सेकेंड, एक हमको मिलने वाला है Ag और एक हमको मिलने वाला है Br2। अब हम इसको क्या करते हैं पता है बच्चों, हम इसको कर देते हैं बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, अब मैं इसके आगे लगा देता हूं 2, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन 2 था तो यहाँ लगा दिया मैंने 2। ओके, अब सिल्वर भी हो गया 2 तो इसके भी आगे लगा दिया 2। पर याद रखना ये जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर है ना, ये व्हाइट नहीं है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर था। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर है पेल येलो। क्या है इसका कलर, पेल येलो कलर है। हाँ जी, पेल येलो कलर है। सनलाइट के प्रेजेंस में जब आता है तो वही सेम सेम वही ग्रेइश व्हाइट। हाँ, ओके, ग्रेइश व्हाइट प्लस ब्रोमीन गैस विल बी गिवन आउट। यहाँ पे एक नोट करेंगे आप, एक पॉइंट नोट करेंगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपके साथ ये चीजें पहले डिस्कस करी हुई हैं। कलर पूछते नहीं है पर आप कुछ आइडिया नहीं है शिवानी बैच 1, कुछ आइडिया नहीं मेरा बच्चा, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटी सी चीज जो बुक में मेंशन करी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, तो आप कुछ भी चीजें ऐसी हो भाई वो आप इग्नोर नहीं करें, लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नोट में आप देखिए कि ये जो रिएक्शन है ना, सेकंड वाला रिएक्शन जो सिल्वर ब्रोमाइड का है बच्चों, ये रिएक्शन पता है कहाँ पे यूज होता है, ये रिएक्शन यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में कुछ पता भी है ना। आजकल भी हमारे मोबाइल पर एक ऑप्शन नहीं होता फोटो खींचने के बाद, कुछ अलग अलग है, सीपिया या ब्लैक एंड व्हाइट अलग अलग। पर एक जमाना था जब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ही होती थी, जब आपके पास टीवी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही होती थी, कलर होते ही नहीं थे टीवी में, तो फोटो भी उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट ही खींची जाती थी। आप अगर अपने घर में जाएंगे ना, अभी घर में ही तो है आदत हो गई है ना कि आप लेक्चर लेने के लिए आप सेंटर पे आते हैं, तो हम बोलते हैं जब घर जाओगे तो अब तो घर पे ही हो, तो लेक्चर खत्म होने के बाद एक काम करिए ना, आप अपने मम्मी पापा को बोलिए अपनी मुझे पुरानी कोई फोटो दिखाइए। हो सकता है आपके मम्मी पापा के बचपन के जो फोटोज होंगे ना वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होंगे। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उस टाइम ना सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता था। तो हमारे पास एक बड़ा सा कैमरा हुआ करता था जिसको आप ऐसा पीछे से खोलते थे, उसके अंदर रोल डालते थे, एक मूवी का एक रोल डालते हैं, ठीक है ना, फिल्म, और फिर उसको बंद करते थे और फिर फोटो क्लिक किया करते थे। आजकल तो लाइफ चेंज हो गई है, 100 फोटो खींचते हैं और एक अपलोड करते हैं, इमीडिएटली पता चल जाता है। वहां उस टाइम ऐसा नहीं होता था, एटलीस्ट मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता था। वो कैमरे का फोटो पूरा कम से कम 1 साल चलता था वो रोल। यश बैच 1 क्या बोल रहा है, कोई अननोन पर्सन? अच्छा, चलो कर लेने दीजिए, उसको अटेंड कर लेने दीजिए क्लास, क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ, नेगेटिव्स हुआ करते थे मेरे गांव में, अभी भी है। हाँ, कैमरा तो अभी भी होगा किसी किसी के पास पुराना, पर अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए। तो आज का आपका होमवर्क क्या होगा पता है, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको अपने मम्मी या पापा के साथ बैठना है, तो बहुत एक्सप्रेसिव है दोनों में से, उनसे पूछना है कि भाई हमें वो कैमरे की हिस्ट्री बताओ। रोल अभी मेरे पास है ही नहीं, रोल मिलता ही नहीं है क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है, ठीक है ना। वो बड़ा जबरदस्त सीन हुआ करता था जब जैसे कोई 32-34 फोटोग्राफ होते थे एक रोल में, ठीक है ना, तो हम 1 या 2 फोटो खींचते थे। मुझे याद है जब बर्थडे होगा तो 1 या 2 फोटो खींच ली, और वो पता नहीं चलती थी फोटो कैसे आई है, क्योंकि वो दिखती थोड़ी थी पीछे, वो डिजिटल स्क्रीन थोड़ी था। बस कैमरामैन फोटो खींच लिया, 2 फोटो खींच ली और कैमरा फिर से चला गया अंदर। फिर कहीं पे कोई साल में किसी और का बर्थडे या कुछ आया, हाँ, बहुत बहुत बहुत, उसमें 2-3 फोटो खींची फिर वो अंदर चला गया। तो ऐसे करके करके करीब कभी कभी क्या होता था, 1 साल निकल जाता था। ये लो हर्ष, सर पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या पूछ रहे हो, इससे अच्छा है पढ़ाई कर लो नहीं नहीं बेटा, पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो,
और पढ़ाई से रिलेटेड बात ही पूछ रहे हो, कोई मना नहीं करने वाला आपको। हाँ हर्ष, अगर तू पूरे दिन भर में पढ़ाई नहीं करता ना और सिर्फ वीडियो गेम या मोबाइल पे लगा रहता है या सोता रहता है तो जरूर तेरे तू मत पूछ, तू रहने दे। नानी के पास देखा है, बहुत बढ़िया। शादी में भी सर, ओके। रोल भी देखा है, यस। हाँ, नहीं भूल सकते, बहुत जबरदस्त चीज है। यूट्यूब पर देखा है। होता फिर 1 साल के बाद जब वो रोल ना फिर आप डेवलप कराने के लिए किसको देते थे? ये जो आपने देखा होगा आपके आसपास कई शॉप्स होती है, फोटो शॉप्स। आजकल तो फोटोशॉप्स का काम ही ऑलमोस्ट बंद हो गया, ठीक है ना। तो वो, हाँ, वो रोल 34 36 फोटोज का रोल था, करेक्ट। वो फिर आप देते थे उसको, वो 3-4 दिन के बाद उनको धुल करके वो फोटोज आपको आपके पास वापस आती थी, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया जाता था। तो वहां पे ना बच्चों, वो जो जब आप फोटो क्लिक करते थे तो कैमरे के अंदर अगर हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कैमरा है और ये कैमरे का वो शटर था, ठीक है ना। तो जब आप क्लिक करते थे तो लाइट इसके अंदर एंटर करती है और अंदर जो रोल होता था, रोल पे सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता था। तो जिस जिस पॉइंट पे लाइट पहुंचेगी वो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वहां वहां का सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन कर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, वो नेगेटिव बोलते थे उसको, वो एकदम उल्टा होता था। अगर आप अपना नेगेटिव देखेंगे ना तो आप हंसेंगे। जो आपका व्हाइट चीज होगी वो ब्लैक होगी और जो ब्लैक होगी वो व्हाइट होगी, मतलब आपके बाल जो होंगे वो व्हाइट दिखाई देंगे उसमें, करेक्ट। और जो आपका चेहरा होगा जो व्हाइट है वो उसमें ब्लैक दिखाई देगा। तो वो ऐसा चीज थी। तो जो जो चीजें वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेती थी, जहां जहां रिएक्शन हो जाता था वहां वहां पर फिर ब्लैक एंड व्हाइट जैसा इफेक्ट आ जाता था, करेक्ट। करेक्ट। तो इस यहाँ हम लिखने वाले हैं, वो सब आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ नहीं आने वाला। ये तो बस मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ाई से आगे अलग ले गया था कि वो फोटो देखेंगे कि वो दुनिया भी होती थी और आज की दुनिया है अलग फोटोग्राफी की। तो आप जरूर लिखिए द रिएक्शन, लिखिए लिखिए लिखिए, द रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन, the reaction of decomposition of silver bromide is used in black and white photography। चलिए चलिए चलिए, साथ साथ में लिखते जाइए, मैं अलग से मौका नहीं दे रहा हूं फिर लिखने के लिए। नहीं नहीं, काला गोरा दिखने वाली बात नहीं है। हाँ, जो भी लाइटर जो चीजें थी ना, लाइट वाली, हल्के हल्के कलर वाली, वो ब्लैक हो जाती थी और जो डार्क कलर था, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता, डार्क कलर है ना, डार्क कलर ही तो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, करेक्ट। ब्राइट कलर तो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो रिफ्लेक्ट करते थे वो ब्लैक हो रहते थे और जो डार्क थे वो एब्जॉर्ब कर लेते थे लाइट को, वहां पे रिएक्शन हो जाता था तो वो व्हाइट हो जाती थी चीजें, पर आप उनको फिर से पॉजिटिव कर लेते थे और फिर आपके पास फोटो मिलती थी वो 34 35 फोटो, जो कि ऑलमोस्ट आपने 1 साल के ड्यूरेशन में खींची होती थी। उससे एक एल्बम भी बनता था। एल्बम नहीं पता आजकल के बच्चों को, मम्मी से पूछना, मेरे घर में तो अभी भी कम से कम 20 से 50 एल्बम्स पड़े हैं। छोटे छोटे एल्बम होते थे, वो एल्बम में आप उन फोटो को डालते थे और बाद में कभी बारिश होगी तो उस टाइम पकोड़े खाते हुए मम्मी पापा वो एल्बम एक एक करके पलटेंगे और बोलेंगे, अरे देखो ये बच्चा ऐसा था, ये देखो आप कैसे थे, ये देख बेटा तू कैसा था बचपन में। हाँ, करेक्ट। तो बचपन के जो फोटोज थे ना, हाँ, वो सब यही था। करेक्ट। तो वो सब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की दुनिया जो थी वो सब सिल्वर ब्रोमाइड के आसपास थी, यानी कि फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन की देन थी वो, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, करेक्ट। उस टाइम अगर आप सामने जाके किसी कैमरामैन को बोलते जाकर के कि आई वांट टू गेट माय फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन डन, करेक्ट, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ओके, दिव्य ज्योत बोलता है मेंटी क्विज आने वाली है, मेंटी क्विज डोंट वरी, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मिल गए आपको, राइट। नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, हेडिंग डालो। यस साहिल, सही बोल रहे हैं। किसको पता था कि उसमें भी केमिकल केमिस्ट्री है, फोटोग्राफी में भी, यस।
हाँ, शॉपकीपर से मार खाते हैं। चलो चलो चलो, तो फिर रेडी हैं? ये देखिए थोड़ा सा टीचिंग सेशन हो गया, करेक्ट। अब आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए मेंटी क्विज पे आ जाते हैं। और मेंटी क्विज पुराने टॉपिक्स नहीं है, डोंट वरी। लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि सर क्या ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नए क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ अभी के जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन्हीं के ऊपर बेस्ड, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी मेंटी क्विज पे चलें। तो आप लोग तैयार हो जाइए फिर, अगर मैं मेंटी क्विज पे आपको लेके जा रहा हूं तो फिर तो हमें आ गए भाई मेंटी क्विज पे हम लोग। बताइए बताइए, आपको स्क्रीन पे मेंटी क्विज दिखाई दे रहा है कि नहीं? निहाल बैच 1, बहुत बढ़िया। एंडोथर्मिक का रिएक्शन का डेफिनेशन बहुत बढ़िया लिखा है, शाबाश बेटा। बट आ जाओ जल्दी से मेंटी क्विज पे। 91 53 98 इज द कोड। 91 53 98 इज द कोड फॉर अस। शाबाश शाबाश। क्या स्क्रीन पे मेंटी क्विज दिख रहा है आपको? जूम के स्क्रीन पे कोई एक आध बच्चा यस लिख करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू अर्पिता, थैंक यू शिवानी, श्रेया थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, स्नेहा थैंक यू, आई हैव गॉट द मैसेज, थैंक यू। क्वेश्चन 9 ऑफ 9 दिखा रहा है। अरे यार, ये तो लगता है मैं क्विज के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गया हूँ क्या? लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गया हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको लेकर के आना पड़ेगा। रुको रुको, मुझे पीछे खींच के ना इसको फिर 1 ऑफ 9 ऐसे सब लाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि और आगे जाने पे कुछ होगा क्या फिर? अच्छा, ये तो लीडर बोर्ड आ गया क्या? हाँ, आ गए हम स्टार्टिंग पे, डोंट वरी। वो एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन पे चले गए थे। 9 ऑफ 9 तने अब तो नहीं दिखा रहा ना, अब तो स्टार्टिंग में आ गया होगा। चलो कर दें क्या शुरू? 57 58 बच्चे, चलो चलो, क्या कर रहे हैं यार? वहां पे 76 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ अभी तक सिर्फ 57 ही पहुंचे हैं। चलो चलो, और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, 9 क्वेश्चन यार, ऐसा मत बोल। हर्षल बैच 1, अगली बार और लेके आऊंगा। ट्रायल वर्जन था ना, मैं बताया ना हर्षल, ट्रायल वर्जन। ओके, 1 ऑफ 9 दिखा रहा है, वहीं से शुरू करेंगे। जोश इज वेरी हाई। कीप योर जोश हाई। जो डर गया वो मर गया। ठीक है, तो हम देखिए क्विज करेंगे और डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक पहुंचेंगे, फिर अपनी क्विज को एक ब्रेक लेंगे, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो आपको सिखाएंगे, फिर दोबारा उसके बाद वापस जाके क्विज अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? चलो क्विज स्टार्ट कर देते हैं। 62 बच्चे आ गए, बाकी अपने आप आते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए आपका क्विज करते हैं शुरू। तो ये क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, a प्लस बी गिव्स यू ए बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इज इट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कम ऑन, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, ये कौन सा रिएक्शन है? इज इट decomposition reaction? I have given you only 30 seconds इस बार, only 30 seconds I have given you.
क्योंकि लास्ट टाइम हमने 45 सेकेंड्स 1 मिनट बहुत ज्यादा टाइम दिया था, इस बार मैंने टाइम बड़ा कम दे दिया आप लोगों को। वॉल्केनो मिल गया कुंदन को फिर से। ये देख लो भाई, ये देख लो। तो ये देख लीजिए आप। सो हमारे पास भाई 44 बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दे दिया है, ठीक है ना। और ये देख लो, a plus b giving you ab, it has to be a combination reaction, right? बिकॉज ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन 6 बच्चों ने लिखा है उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कभी भी ऐसे लिखा जाता है, ए बी गिव्स यू ए प्लस बी एंड नॉट ए प्लस बी गिविंग यू ए बी, करेक्ट। और ये जो बच्चे जिन्होंने 10 बच्चों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन लिखा है वो भी गलत है, करेक्ट। ये कंबशन रिएक्शन के लिए जनरल एक्सप्रेशन नहीं है, यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ना ये कंबशन है ना ये डीकम्पोजिशन है, ये तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 44 स्टूडेंट्स ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स। 44, 16 बच्चे गलत कर गए हैं। ये बड़ी गंदी बात है, ये बड़ी गंदी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 16 बच्चों ने मिस्टेक कर दिया है, वो तो गेम से आउट ही हो गए हैं समझ लीजिए। अब एक बार नीचे चले गए ना तो ऊपर आना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए इसको चल के देखते हैं, हमने इसका तो कर दिया हमने ना, पोस्टमार्टम कर दिया। अभी जरा रिजल्ट देख लें क्या? हाँ तो चलिए रिजल्ट भी देख लेते हैं आपके सामने। लीडर बोर्ड आपके सामने ये रहा, लीडर बोर्ड ये रहा। आप तब तक लीडर बोर्ड देखिए, मैं ये क्वेश्चन, ये एक फोन ले लेता हूँ। हेलो, हाँ भाई, तो लीडर बोर्ड पे क्या कहानी छपी हुई है, क्या बात है, क्या बात है। अर्पिता गोते बैच 2 फास्टेस्ट फिंगर, क्या बात है, नंबर 1 पर। भाई अर्पिता तेरा ये सिंबल क्या है? ये मुझे नहीं पता भाई, अजीब सा सिंबल है ये, इसको मैं क्या बोलूं, तंत्र मंत्र कुछ ऐसा। ओके, और श्रवण बैच 1, ओके, डांसिंग डांसिंग ड्यूओ। और स्वयं ठाकुर इज ऑन पोजीशन नंबर 3, अर्पिता सिंह पोजीशन नंबर 4, निहाल बैच 1 पोजीशन नंबर 5, हार्दिका पोजीशन नंबर 6, केशव पोजीशन नंबर 7, रीवा पोजीशन नंबर 8, साहिल बैच 1 पोजीशन नंबर 9 एंड वैभव इज ऑन पोजीशन नंबर 10। तो भाई ये स्कोर चला हुआ है। आइस फ्लेक्स है, क्या बोल रही है वो, आइस फ्लेक्स नहीं, ये किसी और ने बोला आइस फ्लेक्स है। अच्छा स्नो फ्लेक्स, आइस फ्लेक्स, ठीक है, मुझे नहीं पता था ये। चलो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ आप लोगों से। आइस फ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स। ओके, सो स्नो फ्लेक्स इज ऑन नंबर 1 फॉलोड बाय श्रवण बैच 1 एंड स्वयं ठाकुर इज द 3rd। ओके आगे चलते हैं बच्चों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। CaOH ट्वाइस क्या है? इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। लाइम है, क्विक लाइम है, स्लेग्ड लाइम है, या ऑल ऑफ देम। आपको इनमें से कोई एक चूज करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कम ऑन, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। कम ऑन, 3 2 1, खत्म, टाइम्स अप एंड दिस इज द रिजल्ट आपके सामने। तो भाई इस क्वेश्चन का करते हैं थोड़ा सा हम अपना सा अच्छा रिजल्ट आया नहीं है इस बार भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस क्या था? ये लाइम तो नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। ये क्विक लाइम भी नहीं हो सकता क्योंकि क्विक लाइम का भी फॉर्मूला है CaO। सो लाइम और क्विक लाइम एक ही जैसा है।
जल्दी के चक्कर में आदर्श बैच 2 गलत मत करो। लाइम नहीं मेरे बच्चा, स्वयं पता नहीं क्या है ये बैच 2 का। क्या भाई इतना खतरनाक फॉन्ट मत यूज कर मेरा बच्चे, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ वो क्या लिखा हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। स्लेग्ड लाइम सही जवाब है, क्योंकि स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। और ऑल ऑफ देम भी दिया था 7 बच्चों ने। क्या बात है यार, दिमाग इस लेवल तक भी लेकर के जाते हैं ये 7 बच्चे जिन्होंने ये ऑल ऑफ देम दिया है, वो जरूर आईआईटी की तरफ जाएं। ऐसे स्पेशल माइंड की जरूरत है वहां पर, ठीक है ना। हाँ, किसी ना किसी के लिए सर ने ऑल ऑफ देम दिया होगा, इसका मतलब वही हो सकता है। अरे नहीं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ स्लेग्ड लाइम, एक ही आंसर करेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या गलतियां थी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं वही लीडर बोर्ड जिसका आप सबको इंतजार है, सबको इंतजार है। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, और ये रहा लीडर बोर्ड। अर्पिता गोथे स्टिल ऑन नंबर 1, शाबाश बेटा शाबाश। सेकंड भी वहीं का वहीं है, श्रवण। क्या बात है, अर्पिता गोथे एंड श्रवण, आप दोनों ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट थे, एक साथ दोनों ने आंसर दिया, इसलिए दोनों की पोजीशन हिली भी नहीं, 1 और 2। उसके बाद श्रेया ने इस बार पोजीशन नंबर 3 के ऊपर अटैक कर लिया है। निशांत बैच 2 पोजीशन नंबर 4 पे आ गए हैं। केशव जी पोजीशन नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। बीटीएस का फुल फॉर्म हम नहीं जानते हैं, जो भी कोई है वो पोजीशन नंबर 6 पे है। वैभव पोजीशन नंबर 7 पे आ गए हैं मेरा बच्चा, पहले आई थिंक 10 में था, राइट। हार्दिका जैन बैच 2 पोजीशन नंबर 8 पे आ गई है। पोजीशन नंबर 9 पे आदित्य राजपूत है, और पोजीशन नंबर 10 पर साहिल बैच 1 ये पोजीशन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारी टॉप 10 लिस्ट दिखाई दे रही है आपको। फिर से मुबारक हो अर्पिता गोते बैच 2 फॉर बीइंग द टॉप स्कोरर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉलोड बाय श्रवण बैच 1 एंड श्रेया ऑन नंबर 3। आगे चलते हैं। सो ये था भाई स्कोर, अगले क्वेश्चन के लिए हो जाओ रेडी। और मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन के बाद हमें वापस पढ़ाई के लिए जाना है। ओके बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो यहीं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ना भी है, थोड़ा क्विज भी करना है, पढ़ना भी है क्विज भी करना है। पढ़ेंगे तभी तो क्विज में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ना, ठीक है। चलो, ये आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हो सकता है ये कॉम्बिनेशन का हो सकता है ये डीकंपोजिशन का हो। व्हाइट कलर ऑन द वॉल्स, वॉल्स पे जो आपको व्हाइट कलर दिखता है वो क्या होता है? इज इट लाइम? ऑप्शंस वही दिख रहे हैं फिर से, लाइम, क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम या लाइमस्टोन। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से आपको क्या लगता है? लास्ट 10 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से सोच लीजिए। लाइम, क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम या लाइमस्टोन। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर जो आपको वॉल्स पे दिखाई देता है, आजकल तो सब डिस्टेम्पर लगा रहे हैं, पर मैं बात कर रहा था गलत 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 गलत, सब गलत। देखिए देखिए, चलिए थोड़ा सा इसका हम फिर से पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए सिर्फ 22 बच्चे ही मेरे करेक्ट हैं, सिर्फ 22 बच्चे। लाइमस्टोन करेक्ट आंसर है। मैं आपको समझाता हूं, आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। देखिए बच्चों, जो व्हाइट कलर ऑन द वॉल्स है ना, वो बनता कहां से है? शुरुआत कहां से होता है? चूने से, है ना। चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ध्यान देना पूरा। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो आपका चूना है, जब उसमें आप पानी मिलाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो चूना है, चूने में पानी मिलाते हैं, लाइम में जब वाटर मिलाते हैं तो वो बन जाता है CaOH ट्वाइस, जिसको हमने बोला स्लेग लाइम, करेक्ट। तो लाइम तो यहीं पे ही खत्म हो गया, क्विक लाइम, स्लेग लाइम सब यहीं पे खत्म हो गए। अब ये स्लेग्ड लाइम के कारण वो कलर नहीं आता है, ध्यान देना। अब ये जो स्लेग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, हमने ये रिएक्शन लिखा भी है अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो, करेक्ट।
ये जो स्लेग लाइम है, इसमें जब आप इसको स्लेग लाइम को लेके जब वॉल्स पे लगाते हो तो जो एयर का जो CO2 है ना, वो इसके साथ कंबाइन होता है, करेक्ट। सो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो स्लेग लाइम आपने वॉल पे लगाया, वो CO2 के साथ रिएक्ट हुआ और आपको मिलेगा CaCO3 प्लस H2O। और ये जो CaCO3 है ना, बट बेटा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आके उसके साथ इंटरेक्ट करता है स्लेग लाइम के साथ, और तब वो CaCO3 बनाता है, विच इज द लाइमस्टोन, CaCO3 लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बच्चों हो जाता है व्हाइट कलर का, ये होता है व्हाइट कलर। तो जो आप बोलते हैं ना पपड़ी पपड़ी गिर गई, वो है ये व्हाइट कलर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चे, कुछ बच्चे बचपन में खाते भी हैं इसको। बताओ आप में से कौन कौन ने खाया है? ऐसे से, ऐसे कहीं मम्मी इधर उधर देख रही होगी ना, तो ऐसे खरच खरच के थोड़ा सा खाएंगे उसको। खाया है? ये देख लो, श्रावणी सबसे आगे, श्रावणी बैच 1 सबसे आगे। दिव्य जोत भी स्माइल कर रहा है, इसका मतलब उसने भी खाया है। तन्मय सिंह बैच 2, तूने बहुत कुछ मिस कर दिया लाइफ में, अगर तूने चूना नहीं खाया तो। कभी नहीं। अर्पिता गोते यार, बस यार टॉप कर रही है, लेकिन चूना नहीं खाया तूने कभी लाइफ में यार, ऐसा नहीं है। अगले जन्म में बच्चा बन के पैदा होगे ना, तो सबसे पहले ही चूना खाना, पर थोड़ा खाना, पूरी दीवार मत गायब कर देना। स्मिथ बोल रहा है मैंने खाया है, वेरी गुड स्मिथ। उनको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जिन्होंने बचपन में ये खाया है। डज इट टेस्ट गुड, हर्षल बोलता है। यार टेस्ट गुड तो नहीं बोल सकता मैं, कुछ होता है अलग सा एक टेस्ट है। तू अभी भी ट्राई कर सकता है जा करके। घर में तो डिस्टेम्पर मारते हैं, वहां नहीं तू ट्राई कर पाएगा। स्कूल में जरूर वो डिस्टेम्पर नहीं मानेंगे, वो चूना ही लगाएंगे, तो वहां जाके ट्राई कर लेना थोड़ा सा। ओके, श्रावणी बैच 1 बोलती है भाई मैंने भी खाया है, टेस्ट गुड। क्या बात है, ये लो, अब ये टेस्ट की भी बात हो गई। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो कल को कुछ और भी बोलने लग जाएंगे बच्चे। चलिए देखते हैं आपका लीडर बोर्ड में क्या पोजीशन चल रही है। पूरे स्कूल को खा जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं, क्षमा कर दो अपने स्कूल को। खट्टा सा टेस्ट होता है, स्मिथ बोल रहे हैं, नो आइडिया। चलिए आगे चलते हैं, इस टेस्ट वाली चीज को हटाते हैं, देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन ऊपर चढ़ गया, कौन नीचे चल गया है। कुछ हिला भी है कि नहीं लीडर बोर्ड में? हैं जी? हाँ जी, ऐसा लग तो रहा है, लग तो रहा है कि अर्पिता का ये आंसर गलत हो गया है, और श्रवण हो सकता है ओवरटेक कर जाए। यस, यस, श्रवण ने ओवरटेक कर लिया है। श्रवण बैच 1। देखा अर्पिता, अगर बचपन में तूने खाया होता चूना, आगे का लाइन नहीं कंप्लीट कर पाया, तो पोजीशन नंबर 1 ना बन जाता ऐसा सोना। अरे क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, महाफालतू। चलो बात करते हैं। सो श्रवण बैच 1 हैज ग्रैब्ड द पोजीशन नंबर 1, वो ऊपर आ गए हैं। थोड़ी हलचल, और भाई मेरी अर्पिता बेटा, अर्पिता जी पहुंच गई है पोजीशन नंबर 3 पे। पोजीशन नंबर 2 पे आ गए हैं केशव जी, वाह। और पोजीशन नंबर 4 पे स्ट्रॉबेरी द जानवी। पोजीशन नंबर 5, ओके, द किंग्स क्राउन, अनगा। ये पहली बार आया भाई टॉप 10 में। मुबारक हो अनगा, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं श्रवण को श्रावणी बोल रहा हूं? नहीं भाई, श्रवण बैच 1 नंबर 1 पोजीशन पे है श्रवण। 6th पोजीशन फिश आकांक्षा। 7th पोजीशन अर्पिता गोते बैच 2। ओ हो। ओके ओके, तो ये अर्पिता बैच गोते यहाँ पे है, ये बैच 2 वाली बेचारी पोजीशन नंबर 7 पे पहुंच गई है यार। वो मैं यहाँ पे अर्पिता सिंह देख रहा था। अच्छा, अर्पिता सिंह तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके टॉप 10 में घुस के आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्पिता सिंह। अर्पिता गोते बैच 2 जो शायद टॉप पे थी, वो अब यहाँ तक फिसल गई है। थोड़ा सा चूना खाइए, आप फिर से ऊपर आएंगी। श्रेया पोजीशन नंबर 8 पे दिख रही हैं। निशांत बैच 2 पोजीशन नंबर 9 पे दिख रहा है। और पोजीशन नंबर 10 पे भी आई थिंक ये नई एंट्री है, रोहित। रोहित इज ऑन पोजीशन नंबर 10। अच्छा, चूना वाला
वो श्रवण की जगह पे श्रावणी बोल रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं क्या? मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, दूर का मुझे दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, सॉरी फॉर दैट। श्रवण हो या श्रावणी हो, चूना तो खाया था और किसी ने खाया नहीं था। चलिए ये हटाते हैं, इसका पोस्टमार्टम हो गया है खत्म। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम का। लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस चीज के मैन्युफैक्चर के लिए लाइम यूज होता है? सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए, या ग्लास के मैन्युफैक्चर के लिए, या दोनों ग्लास और सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए? बड़ा ट्रिकी है। आपके पास अभी भी सिर्फ 10 सेकंड है, अगर अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है तो अभी भी आप अपना करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। आंसर दे दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्या श्रवण बैच 1 क्या बोल रहे हैं? आई थिंक आई गॉट इट रॉन्ग। फिर तो गई तेरी पोजीशन मेरे बच्चे। देख लेना, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ये हमारे रिजल्ट्स हैं। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आंसर था बच्चों बोथ, दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है लाइम, यानी कि ग्लास के लिए भी और सीमेंट के लिए भी। क्या भाई श्रवण, सही हुआ कि गलत हुआ? और ग्लास वाले बच्चे तो हो गए गलत, जिन्होंने बोला सिर्फ ग्लास के लिए गया। हो सकता है। अर्पिता गोते की क्या पोजीशन है? अर्पिता गोते बैच 2 राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? और ये 35 माशा अल्लाह, या अल्लाह, चक्कर आ जाएंगे। 35 लोग गलत हो गए। 35 अर्पिता गोते का भी रॉन्ग हो गया है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आज तो यार। आज जबरदस्त क्विज हो रही है, बहुत जबरदस्त उलट फेर हो रहा है। इसको हटा देते हैं और मैं जल्दी से, मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूं। सैंड से ग्लास बनता है, हाँ बेटा उसमें भी यूज होता है SiO2, वहां पे भी यूज होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मिसिंग द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ कहूट। आदित्य म्यूजिक इसमें भी है, जबरदस्त म्यूजिक है इसमें भी। मैं अगली बार कोशिश करता हूँ, बट फिर वो क्या है, वो आवाज बंद करने का कोई इसमें कोई सिस्टम नहीं है। वो एक बार अगर आवाज चालू हो जाए ना, तो मेरी आवाज कम हो जाएगी उसके पीछे। पर कोशिश करता हूँ अगली बार थोड़ा सा आवाज भी लेकर के आता हूँ, म्यूजिक भी लेके आता हूँ। ठीक है, सीमेंट किया था फिर भी करेक्ट दिखा रहा है, ऐसा बात है यार। ये किसी किसी का पक्ष क्यों ले रहा है? ये तो बोथ बोथ होने पर ही आना चाहिए था। चलो देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ नीचे, ऊपर मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन नीचे बड़े बदलाव होने वाले हैं। ओ मेरे घर वाले पता है बोलते हैं मैं पागल हो जाता हूँ जब कंडक्ट करता रहता हूँ तो। सर मैंने सीमेंट, अरे जानवी नंबर 1, जानवी नंबर 1, जानवी। क्या बात है जानवी द स्ट्रॉबेरी, क्या बात है महाबलेश्वर वाली जानवी, स्ट्रॉबेरी नंबर 1 पे है। श्रवण ज्यादा नहीं टेंशन में आया है, श्रवण, श्रवण कोई बात नहीं बेटा, पोजीशन नंबर 2 पे ही है तू, अभी भी वापिस ले आएगा। 13 आदर्श बोल रहा है मैं तो 13 में अटक गया हूँ। दिव्य ज्योत फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। भाई आज ये कुमकुम नहीं है क्या? कुमकुम का एक भी मैसेज नहीं आ रहा है। कुमकुम तेरे हनी भी आज ले लिया दिव्य ज्योत ने, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके पोजीशन नंबर 3 पे आ गया है दिव्य ज्योत। उसके बाद केशव पोजीशन नंबर 4 पे है, वेरी गुड केशव, थोड़ा सा नीचे चला गया है पोजीशन। कुंदन द किंग ऑफ यूनिवर्स, क्या बात है, वॉल्केनो पोजीशन नंबर 5, वॉल्केनो मस्त फट रहा है एकदम। हार्दिका जैन बैच 2 पोजीशन नंबर 6, आदित्य राजपूत द बर्गर पोजीशन नंबर 7, अर्पिता सिंह पोजीशन नंबर 8। अर्पिता गोते गायब हो गई है, पानी में गोते खा रही है। अर्पिता सिंह भी पोजीशन नंबर 8 पर पहुंच गई हैं। रिया पोजीशन नंबर 9 और दिया पोजीशन नंबर 10। क्या बात है, रिया और दिया, क्या जबरदस्त राइमिंग आया है। पोजीशन नंबर 9 और 10 पर रिया दिया। तो ये मैंने आपको लीडर बोर्ड दिखा दिया। वाह, एक और राइमिंग हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो धमाके पे धमाके हो रहे हैं।
टप्पू ये शब्द मेरा फेवरेट है। टप्पू के पापा क्या बोल रहा है हर्षल बैच 1, सुनो ध्यान से, बोलता है टप्पू के पापा 38 पर है आज टप्पू के पापा नीचे हैं, आज टप्पू के पापा नीचे हैं। और ये बच्चों आपका आने वाला है स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। कंपाउंड विच गिव्स ब्राउन फ्यूम्स, हीटिंग करने पे ब्राउन फ्यूम्स कौन देता है? भाई इससे इजी क्वेश्चन नहीं मैं बना सकता था, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही हमारे पास कंपाउंड था जिसमें से हीट करने पे 3 प्रोडक्ट मिलते हैं और जिसमें एक ब्राउन कलर की फ्यूम भी निकलती है, एक गैस है। चलो वो गैस का नाम नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई मुझे चैट बॉक्स में जिन्होंने आंसर दे दिया चैट बॉक्स में उस गैस का नाम लिख करके बता दो, ब्राउन कलर की गैस का नाम, है ना। यहाँ तो कौन से कंपाउंड को हीट करने पे वो गैस मिलती है। और ये हो गया भाई टाइम खत्म। तो बच्चों बहुत लोग गलत हो गए हैं। फेरस सल्फेट आंसर नहीं है मेरे बच्चों। चलिए पोस्टमार्टम करते हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने फेरस सल्फेट को चूज किया है वो सब गलत हैं, क्योंकि भाई FeSO4 के हीट करने पर आपको मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो दो गैस निकलती हैं सल्फर स्मेल की गैस है ये, बट ये बिल्कुल भी ब्राउन फ्यूम्स नहीं है, ब्राउन फ्यूम्स नहीं है। तो ये गलत हो गया। लेड नाइट्रेट वाले बच्चे सही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाले बच्चे सब गलत हैं। क्यों गलत हैं भाई? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने पर आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई ये बच्चे लोग भी हो गए गलत। सिल्वर क्लोराइड वाले भी हैं, देखो माशा अल्लाह, ईद मुबारक हो, सिल्वर क्लोराइड वाले भी हैं यहाँ पर, है ना। सिल्वर क्लोराइड AgCl, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिनको सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करने पे आपको सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस मिलेगी। भाई इसमें तो कोई ब्राउन कलर की फ्यूम्स थी नहीं। हाँ ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, सही बोल रही है रुचा बैच 1, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही तो रिएक्शन है ये। और कौन सा वाला? लेड नाइट्रेट वाला हमने रिएक्शन किया था, देखो PbNO3 whole twice on heating gives you PbO plus NO2 plus O2। तो इसमें तो एक तो ऑक्सीजन मिलती है, करेक्ट, और दूसरा मेरे बच्चे कुमकुम जरा ध्यान दे, मैंने पूछा है कंपाउंड जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स हीटिंग पे प्रोड्यूस करता है वो। मैंने ये नहीं पूछा कि लेड नाइट्रेट का कलर बताओ, है ना। लेड नाइट्रेट का कलर तो वैसे येलो नहीं होता है, व्हाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट। जब वो बर्न होता है ना, जब वो लेड ऑक्साइड देता है वो येलो कलर का होता है। और उसमें से जो ये जो NO2 गैस निकलती है ना, ये वो ब्राउन कलर की गैस है। तो इसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, ब्राउन कलर की फ्यूम्स NO2 की। तो क्या बोलता है वो कंपाउंड जिसको हीट करने पे ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। तो हमारा कंपाउंड हुआ लेड नाइट्रेट, तो इसलिए हमारा लेड नाइट्रेट करेक्ट आंसर है। कुमकुम समझ गई क्या मेरी बच्ची? चलिए तो इसका हो गया डाइसेक्शन कंप्लीट। चलते हैं आगे, लीडर बोर्ड देखते हैं। इस बार काफी धमाका हुआ है, काफी बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि सिर्फ 14 बच्चे करेक्ट हुए हैं। अब टप्पू के पापा कहाँ हैं पता नहीं, और कौन किधर है पता नहीं। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड। ये रहा बच्चों आपका लीडर बोर्ड। ओ हो, जानवी बच गई बच्चा, तू बच गई। जानवी स्टिल ऑन टॉप, पोजीशन नंबर 1 जानवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। केशव फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके पोजीशन नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। अनगा पोजीशन नंबर 3 पे हैं। श्रवण बैच 1 पोजीशन नंबर 4, थोड़ा सा और नीचे उतर गए हैं बेटा। पोजीशन नंबर 5 पे दिव्य ज्योत है। पोजीशन नंबर 6 पर कुंदन द किंग ऑफ यूनिवर्स, पोजीशन नंबर 6। हार्दिका जैन पोजीशन नंबर 7। आदित्य राजपूत पोजीशन नंबर 8। अर्पिता सिंह पोजीशन नंबर 9। ये बेचारी अर्पिता गोते तो आउट, अब अर्पिता सिंह का भी बाहर जाने का टाइम आ रहा है। और मेरी रिया तो यहाँ पे है, पर दिया उसको किसी ने लात मार दिया और टॉप 10 से नीचे लुढ़का दिया।
तो रिया बेचारी पोजीशन नंबर 10 पे, दिया हो गई गायब। यहां से आगे चलते हैं। तो ये था भाई आपका लीडर बोर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर मिलने वाला है ये। नेम द गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस। अभी कर रहे थे, वाटर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। नेम द गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कैथोड पे कौन सी गैस है भाई? ये तो गलत नहीं हो सकता है अभी। अब ये जिस किसी बच्चे का गलत हुआ ना, वो पक्का आईआईटी के काबिल है बस, क्योंकि अभी अभी किया है, आज ही की क्लास में हमने पढ़ा है ये चीज। यस, हाई कोर्ट आज ही पढ़ा है। टप्पू के पापा पूरी तरह से मर गए, हर्षल बोलता है। 3, 2, 1 रिजल्ट ये है। हाइड्रोजन ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन ही होना चाहिए। ये देखो 11 लोग अभी भी ऑक्सीजन पे हैं। भाई क्या पूछ रहा है ये? हमारी समझ में ना आ रहा ये कि छोरे लोग या छोरे छोरियां गलत आंसर क्यों कर दे रहे हैं। नेम द गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। कैथोड बोलते ही हाई कोर्ट याद आना चाहिए, और उसमें ये सी, तो ये कैथोड। तो आपके पास हाई का जो H है वो बन जाता है हाइड्रोजन। तो ये क्यों कर 11 लोगों ने ऑक्सीजन सिलेक्ट किया है पता नहीं, पर 45 बच्चे करेक्ट हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस 45। हाँ, क्लोरीन नहीं बेटा, क्लोरीन किसी का नहीं है। ऑप्शन था लेकिन किसी ने क्लोरीन टिक नहीं किया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दैट कि भाई इतने कमाल के बच्चे तो नहीं है, है ना? सिर्फ आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। वो तो हार्वर्ड जाने वाला बच्चा होगा जो क्लोरीन कर देता। तो करेक्ट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं स्कोर बोर्ड पे असर थोड़ा तो पड़ा होगा, ज्यादा नहीं पड़ा होगा, क्योंकि 45 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो ज्यादा स्कोर बोर्ड पे असर नहीं पड़ेगा। देखते हैं, देखते हैं। जानवी को भी मिला, अनगा को भी मिला, तो फिर ज्यादा अप डाउन नहीं होना है। ये देखा मैंने, वही बोला था, ज्यादा अप डाउन नहीं हो रहा है। स्टिल जानवी ऑन टॉप, अनगा सेकंड पे आ गए हैं, श्रवण बैच 1 पोजीशन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, शाबाश। दिव्यजोत पोजीशन नंबर 4, कुंदन द किंग ऑफ यूनिवर्स पोजीशन नंबर 5, हार्दिका जैन पोजीशन नंबर 6, अर्पिता पोजीशन नंबर 7, रिया पोजीशन नंबर 8, आदित्य राजपूत पोजीशन नंबर 9, और दिया, क्या बात है, क्या कमाल कर दिया तूने तो दिया। यस, फिर से उसने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट डाली है, और वो टॉप 10 में फिर से जगह बना ली है उसने। क्या बात कर रहे हैं आदर्श बैच 2, तो पोजीशन नंबर 15 पे आ गया। क्या बात है, मजेदार बात। 15 पे है, जल्दी जल्दी, बस 5 और, 5 और। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, शाबाश दिया। आ जाते हैं आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई टाइम ही खत्म होता जा रहा है, ये तो हमारा लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है। भाई गॉड। कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक और करना है जल्दी से। कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज होता है? एवरीवन हैज वोटेड। 57 बच्चे सिर्फ वोट कर रहे हैं, और ये बता रहा है एवरीवन हैज वोटेड। भाई हमारे पास पार्टिसिपेंट तो 66 है, 57 में ही खत्म कर देता है। चलो, कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है? भाई सिल्वर ब्रोमाइड। वो तो हम सबको पता है, फिर से एज यूजुअल करेक्ट। पर 8 बच्चों ने अभी भी सिल्वर क्लोराइड लिखा है, बिल्कुल गलत। सिल्वर क्लोराइड नहीं यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए यूज होता है ना। और ये देखिए लेड ब्रोमाइड, बहुत जल्दी जल्दी में लोग लेड ब्रोमाइड भी तुक्का मार गए। वो ब्रोमाइड ढूंढ रहे थे, करेक्ट। तो लेड ब्रोमाइड मैंने जानबूझ के फंसाने वाला दिया था। 3 बच्चे उस जाल में फंस गए, और 8 बच्चे यहाँ फंस गए, बाकी 46 का तो राइट आंसर आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने करेक्ट दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं। लीडर बोर्ड बच्चों हमारे पास ये है। आज हम विनर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, विनर नहीं डिसाइड कर पाएंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, क्योंकि मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे ना, वो अगले टॉपिक से भी रिलेटेड थे, तो हमारा ये काफी लंबा चलने वाला है, काफी लंबा। पर फिर भी हम ओरली देख करके ही बोल सकते हैं कि आज का विनर कौन है। फिलहाल तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का विनर मेरे हिसाब से
तो जानवी है, जानवी आज की विनर है। जानवी वो स्पार्कल नहीं गिर रहे हैं यार आज, ठीक है ना, क्योंकि क्विज खत्म नहीं हुई हमारी। तो जानवी आप पोजीशन नंबर 1 में है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनगा आप पोजीशन नंबर 2 पे हैं। दिव्य जोत फास्टेस्ट फिंगर करके आप पोजीशन नंबर 3 पे हैं। श्रवण बैच नंबर पोजीशन नंबर 4। कुंदन द किंग ऑफ यूनिवर्स पोजीशन नंबर 5। अर्पिता सिंह वापस आ गई है पोजीशन नंबर 6 पर। हार्दिका जैन पोजीशन नंबर 7। रिया पोजीशन नंबर 8। आदित्य राजपूत पोजीशन नंबर 9 और दिया पोजीशन नंबर 10। तो भाई ये लो हर्षल, इधर आ जरा, चेहरा लेके आ जरा, तेरा कान खींचो। बोलता है सर मजा आ गया, फिजिक्स का लेक्चर भी ऐसे ही रखोगे क्या? चलो ठीक है, कोशिश करेंगे फिजिक्स के लेक्चर में भी ऐसे। देखिए मेरा पूरा होल एंड सोल मोटिव एक ही होता है कि आपको मजा आए और साथ ही साथ में पढ़ाई भी हो, ठीक है ना, दोनों चीजें हो जाएं तो लाइफ ही बन जाती है, राइट। तो आपको बिल्कुल भी 1.5 आवर ऐसा लगता नहीं, पर अभी 10 मिनट है, हम बात नहीं करेंगे, आगे जाएंगे, आपको अगला टॉपिक कराना है। तो भाई ये हमारा आज के रिजल्ट्स हैं। जानवी जी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रही हैं आज की विनर। सेकंड अनगा, करेक्ट, और थर्ड है हमारे दिव्य ज्योत। सो ये हमारे टॉप 3 आज के थे। वापस चलते हैं बच्चों, हमारे लेक्चर पे चलते हैं। हम लेक्चर में प्लीज हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग तो क्या डालेंगे अभी, एक मिनट। हाँ यस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे आ जाते हैं। थैंक यू जानवी, एनीथिंग फॉर यू ऑल बच्चा लोग। हाँ अब फोन मरने वाला है, अभी तक नहीं मर रहा था फोन। जब तक मेंटी चल रहा था फोन नहीं मर रहा था। चलो लिखना शुरू करो, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चलो 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 जल्दी। Those reactions in which heat energy is absorbed are called endothermic reaction। चलिए चलिए आगे। और इसमें प्लस हीट कहाँ पे होती है, रिएक्टेंट के साइड में होती है ना। तो जैसे कि आपका कोई रिएक्शन हो गया A प्लस B, आप इस तरफ लिखते हो प्लस हीट, और आपको कुछ C प्लस D मिल रहा है, ठीक है ना। कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो, A के ऊपर हीट किया और आपको B प्लस C मिला। अच्छा हाँ बच्चों, इससे एक चीज याद आ रही है, इससे एक चीज याद आ रही है कि जो अभी जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुए थे ना, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने किए थे, सब में हीट एनर्जी, सब में एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। हीट एनर्जी नहीं, एनर्जी की तो जरूरत पड़ी थी, करेक्ट। कहीं पे थर्मल हीट की जरूरत पड़ी, कहीं पे हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद ली, और कहीं पे हमने सनलाइट की मदद ली। तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मुझे कोई एग्जाम्पल दे दे, है ना, तो आपके पास एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, आपके पास एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। हाँ, कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक से डरने की जरूरत नहीं है। आप वो लेड नाइट्रेट वाला भी लिख सकते हैं, आप वो फेरस सल्फेट वाला भी लिख सकते हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी लिख सकते हैं, आप वाटर वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं, आप AgCl वाला भी लिख सकते हैं, आप AgBr वाला भी लिख सकते हैं। आप कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दीजिए, वो आपका एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ओके कुंदन भाई एक जगह बैठ जा, कहां घूम रहा है इतना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। लिख लिया क्या आप लोगों ने जल्दी? हम्म ओके एक क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड दिखाओ ना यार, मरवा दोगे तुम लोग इतना स्लो जाने पे ना, अरुण सर मेरा गला काट देंगे, बोलेंगे अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, चैप्टर नंबर 1 ये सब चल रहा है, तुम गेम खेलते रहते हो सबके साथ। सब तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बड़े कमजोर बच्चे हैं। हाँ एकदम नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रहा है उनको। जल्दी कर आदित्य राजपूत, स्लाइड लगा दिए मैंने। जानवी बैच 2 स्लाइड लगा दिए। अर्पिता बैच 1 तब तक क्या पूछ रही है जरा सुन लेते हैं। बोलती है सर तो हीट एनर्जी के अलावा
सारी एनर्जी भी एंडोथर्मिक में ही है क्या? यस बेटा, एंडोथर्मिक हीट एनर्जी डालो एंडोथर्मिक हो गया, है ना। सनलाइट डालते हैं वो भी एनर्जी है एंड अंदर जा रही है ना, तो एंडोथर्मिक हो गया। करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंडोथर्मिक हो गया। तो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक में आ जाते हैं। कुंदन मरने वाला है फोन, उसके बाद क्या करने वाला है? उसको दफनाने वाला है कि जलाने वाला है वो बता देना। दोबारा चार्ज करने वाला है। चलो आगे चलते हैं, बहुत टाइम दे दिया, 4 मिनट और बचे हैं, 4 मिनट और बचे हैं और हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। हाँ पीयूष, अभी तेरी कमी रह गई थी। पीयूष देखो क्या बोलता है, सर एक्स्ट्रा क्लासेस लिया करो, हफ्ते में बस एक बार होता है। अरे भाई हाँ हाँ, अरुण सर से बात करो। दिव्यजोत बोलता है सर मेंटी में मेरा सेकंड थर्ड पोजीशन हुआ, कब बेस्ट होगा? मुझे तो रेस्ट करना है। चलो ठीक है। तन्मय बोलता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू, यस तन्मय एकदम सही है। तन्मय बैच 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा बनाता है और कॉम्बिनेशन उसका जस्ट ऑपोजिट है। करेक्ट, मैं समझ रहा हूं तन्मय। 5 से 8:30 बजे, यस सर का वो कंटिन्यूस, नहीं तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक मिल जाता था ना हमको। ठीक है, अब उसको मरने देना बस, जब तक वो मरेगा नहीं ना तब तक छोड़ना नहीं, सुनते रहना लास्ट लेक्चर। मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। बायो की मैडम 2 क्लास लेती हैं तो मेरी वैसे ही 2 हो जाती है ना। फिजिक्स की एक और केमिस्ट्री की एक। क्या इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाती है बायो की मैडम, 2 क्लास? क्या बात है। हाँ, और मेरे लिए तुम लोग बस एक ही लेक्चर ले रहे हो। अच्छा, तो चलो आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी ए बी, ये सही बोला ना। एक तो देखो दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और डीकंपोजिशन की। जनरल रिएक्शन भी लिख देना है। नहीं तन्मय, ये चीजें हम उस पे नहीं बोल सकते अपने इसमें। ठीक है, तो ए प्लस बी ए बी और वो देता है ए बी गिव्स यू ए प्लस बी। आप वाटर को दोनों जगह लिख सकते हो और कोई दूसरा रिएक्शन मत लिखना, यहाँ वाटर आप दोनों जगह लिख सकते हो। थैंक यू कुमकुन। H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O और उसका ऑपोजिट करके लिख देने का है H2O गिव्स यू H2 प्लस O2। मजा बहुत आता है, मजा तो आता है मुझे पता है, लेकिन मेरे को मेहनत बहुत लग जाती है उस पे। अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है कि अब क्या करो। 2% बची है, बस मरने दे, बस मरने दे एकदम आराम से। फिर चार्ज नहीं करना, आधे 2-4 घंटे चार्ज मत करना, आराम से। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नहीं नहीं, ये तो आपको आता है, ये करेंगे नहीं, ये आपको आता है, अभी भी टाइम है। मेरी घड़ी में अभी भी 20:29 हुआ है, करेक्ट है। और इसमें तो बहुत ही कम हुआ है रिकॉर्डिंग में। तो डाउट पूछ बेटा। ये क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं, क्वेश्चन है बुक का। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी, एक एक रिएक्शन कोई भी लिख देना, कोई भी लिख देना। देखो इलेक्ट्रिसिटी का तो हमने एक ही पढ़ा है, वाटर वाला, तो वही लिखना पड़ेगा, करेक्ट। लाइट वाला जो है, सनलाइट वाला, वो दोनों में से कोई एक लिख देना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और साहिल रुक जा, और हीट के लिए कोई भी, थर्मल डिकम्पोजिशन का कोई भी एक लिख देना। लेड नाइट्रेट लिख देना, FeSO4 वाला लिख देना, या कैल्शियम कार्बोनेट वाला, कोई भी एक लिख देना, कोई भी एक लिख देना, चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कोई भी एक लिख देना। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और टाइम हो गया है खत्म। शाबाश आदर्श, तू ही है असली स्टूडेंट, 1% बैटरी में भी लेक्चर अटेंड कर रहा है। तू ही है, तू ही कल को IIT जाने वाला है भाई। एवरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, कितने सारे आ रहे हैं। बाय सर, गुड नाइट। ये बच्चे बड़े गंदे हैं। बाय बाय, बाय बाय, 8:30 हो गए हैं।
आगे मुझे भी फीस नहीं देने वाले सर, मैं बंद कर रहा हूँ। किस चीज का रिप्लाई चाहिए मेरी बच्ची अर्पिता बैच 1? वो इतना ऊपर निकल गया पता ही नहीं चल रहा है। डाउट है अर्पिता बैच 1, पूछा नहीं, ऊपर चला गया। एक साथ 10-10 15-15 SMS बाय बाय के आ गए, तो सब कुछ ही बाय बाय हो गया। मुझे तो मैसेज कर ले बेटा, कोई डाउट है ना, मैं मैसेज कर ले, उसमें बता देता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, आई एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच। हेमंत सर फिर मिलेंगे वेडनेसडे को आपके साथ फिजिक्स के साथ। जरूर थोड़ा सा पढ़ के रखिए, क्योंकि उसमें भी हम पढ़ाई और उसके साथ साथ मेंटी का कॉम्बिनेशन लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।